میں نے اپنے دوست کے ساتھ کاروبار میں پیسے لگائے مگر وہ سب لے کر بھاگ گیا۔ میں سڑک پر آ گیا۔ غیرت نے بھیک مانگنے نہ دی، ہاتھ میں کپڑا پکڑ کر گاڑیوں کے شیشے صاف کرنے لگا۔ ایک بڑی گاڑی کے اندر سے ایک میڈم نکلی، بولی شکل سے مجبور لگتے ہو، اگر میری بیٹی سے شادی کر لو تو 1 رات کا 1,00,000 روپے دوں گی۔ میں چونکا مگر بھوک اور حالات نے ہاں کروا دی۔ سوچا شاید بیٹی بیمار یا پاگل ہے، چلو عزت سے پیٹ تو بھر جائے گا۔ شادی ہوئی۔ نکاح کے بعد وہ مجھے کمرے تک لے گئی، یوں ہی قدم اندر رکھا تو جان نکل گئی۔ جب میں نے کام ختم کیا تو وہ کہنے لگی تم مجھے اچھے گھر کے لگتے ہو، پھر یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ مگر میں مسکرا دیا کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں کون تھا اور مجھے حالات نے کیا بنا دیا تھا۔ وہ چند لمحے چپ رہی، پھر کہنے لگی اگر میں تم سے ایک بات کہوں تو برا تو نہیں مانو گے؟ میں نے سر جھکا دیا۔ تبھی وہ دھیرے سے کہنے لگی اگر تم میری بیٹی سے شادی کر لو تو میں تمہیں 1 رات کے 2,00,000 روپے دوں گی۔ میں ٹھٹک گیا، میرے ہاتھوں سے کپڑا گر گیا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا مگر وہ بولتی جا رہی تھی۔ میرے ہونٹ خشک ہو گئے، دماغ سن ہو گیا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا میں بھیک نہیں لیتا، مگر وہ مسکرا دی۔ یہ بھیک نہیں، رشتہ ہے، تمہیں عزت دوں گی، تمہاری غیرت سلامت رہے گی۔ میرے اندر جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی، میں نے نظریں نیچی کر لیں۔ ایک لمحے کو میں نے سوچا اگر میں ہاں کر دوں تو سب آسان ہو جائے گا۔ اماں کا چہرہ میرے دماغ میں ابھرا، چھوٹی بہن کی مسکراہٹ یاد آئی۔ میں نے آہستہ سے کہا مجھے سوچنے دو، فیصلہ تو میں اسی وقت کر چکا تھا۔ اس لیے میں نے اگلے ہی دن اس عورت کو اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں تیار ہوں مگر میرے اس نکاح میں میرے گھر والے شامل نہ ہوں گے۔ وہ عورت جیسے خوشی سے کھلکھلا اٹھی اور مجھے اپنے ساتھ ایک بڑے بنگلے میں لے گئی۔ وہ بنگلہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں نے سوچا تھا۔ میرا نکاح سادگی سے ارم کے ساتھ ہو گیا۔ مجھے بس ایک بات کی چلتی تھی کہ میں جان سکتا کہ آخر اس لڑکی کی ایسی کیا مجبوری تھی جو اس کی ماں نے ایک سڑک چلتے سے اس کا نکاح کروا دیا اور ساتھ ہی اتنی بڑی رقم بھی دے دی۔ مجھے لگا شاید وہ کوئی معذور لڑکی تھی جس کی ماں رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے حالات سے تنگ آ کر میرے ساتھ اس کی شادی کر رہی تھی۔ لیکن جب میں اس کے کمرے میں گیا تو اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام حسین ہے، میں لاہور کے نواحی گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میں اپنی ایک چھوٹی بہن اور اماں ابا کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ ابا ایک سرکاری کالج میں کلرک تھے اور اماں ایک تعلیمی ادارے میں پڑھاتی تھی۔ میرا تعلق ایک پڑھی لکھی فیملی سے تھا اور اس لیے اماں ابا ہمیشہ چاہتے تھے کہ ہم بھی اچھی تعلیم حاصل کر کے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ میری اپنی طبیعت تھوڑی سنجیدگی والی تھی جبکہ میری چھوٹی بہن شرارتی طبیعت کی لڑکی تھی۔ میں شروع ہی سے پڑھائی میں اچھا تھا، بڑا بیٹا تھا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ محنت کر کے کچھ بڑا بنوں تاکہ اپنے ماں باپ کا سر فخر سے بلند کروں اور ان کا سہارا بن سکوں۔ میرے شہر میں تعلیمی سہولیات کم تھی تو ابا نے میرا داخلہ قریب کے شہر کے ایک اچھے اسکول میں کروا دیا۔ وہ اسکول گھر سے کافی دور تھا، اس لیے جب میں میٹرک میں ہوا تو اسکول کے قریب ہی ایک ہاسٹل میں رہنے لگا۔ جب میں نے میٹرک کے بعد انٹر میں بھی شاندار کامیابی حاصل کی تو پھر میں نے ابا سے اپنی اس خوشی کا اظہار کر دیا کہ میں مزید پڑھنا چاہتا ہوں۔ ابا کو میری خواہش پر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو خود چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر کامیاب ہو جاؤں مگر آگے پڑھنے کے لیے مجھے اپنے شہر سے دور جانا پڑتا تھا۔ مجھے تو اس میں کوئی اعتراض نہ تھا مگر اماں مجھے اتنی دور بھیجنے کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ جب مجھے شہر میں رہنے کے لیے 1 سال گزر گیا تو اچانک ابا کی طبیعت بگڑنے لگی، اس لیے اس کو وقت سے پہلے ہی ریٹائرمنٹ لینی پڑ گئی۔ ابا کی ریٹائرمنٹ کے بعد میں بھی پڑھائی کے ساتھ ایک اکیڈمی میں پڑھانے لگا مگر اسی دوران ابا چل بسے۔ وہ میرے لیے بہت مشکل وقت تھا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ میری پڑھائی جلد از جلد مکمل ہو جائے اور میں واپس جا کر اماں اور زینب کے ساتھ گھر میں رہ سکتا۔ اس لیے میں نے پہلے سے زیادہ محنت کرنا شروع کر دی تاکہ کامیاب ہو کر اپنے گھر واپس جا سکتا۔ میرے لیے وہ وقت بہت مشکل تھا، ایک تو پڑھائی کی ٹینشن تھی، اوپر سے ہر وقت بس گھر والوں کی فکر ستاتی رہتی۔ ابا کے گزر جانے کے بعد اماں کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی مگر وہ ایک بہادر اور ہمت والی خاتون تھی، اس لیے انہوں نے خود کو ہم دونوں بچوں کے لیے سنبھالا۔ ابا کے گزر جانے کا صدمہ اماں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا مگر وہ اس صدمے سے بہت جلد باہر آ گئی۔ وقت گزرتا گیا اور آخرکار میری ڈگری مکمل ہو گئی۔ وہ میرے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس موقع پر مجھے ابا کی بہت یاد آئی تھی، کاش وہ میری کامیابی دیکھ سکتے۔ مگر ڈگری مکمل کرنے کے بعد ہی میرا اصل امتحان شروع ہو گیا تھا اور وہ تھا ایک اچھی نوکری حاصل کرنا۔ میں نے مختلف کمپنیوں میں اپلائی کرنا شروع کر دیا
मगर तजर्बा न होने की वजह से मुझे हर जगह से इनकार हो गया। इसी दौरान अम्मा की तबीयत भी कुछ ज़्यादा ख़राब रहने लगी। फिर एक दिन मुझे ज़ैनब का फ़ोन आया। वो मुझे कहने लगी अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और डॉक्टर कह रहे थे कि फ़ौरी इलाज की ज़रूरत है। ये सुनते ही मैं फ़ौरन घर के लिए निकल पड़ा। अम्मा को अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने बताया कि वो शदीद ज़हनी दबाव में और कमज़ोरी का शिकार हो गई थी। मैंने फ़ैसला कर लिया कि मुझे कोई भी नौकरी करनी होगी ताकि अम्मा का इलाज और घर के हालात बेहतर हो सकते। चंद हफ्ते बाद ही मुझे लाहौर की एक अच्छी कंपनी में स्टंट डायरेक्टर की नौकरी मिल गई और वहाँ पर मेरी तनख्वाह इतनी तो थी कि मैं इस तनख्वाह से अम्मा के इलाज के साथ साथ ज़ैनब और घर के अखराजात पूरे कर सकता। मैंने अम्मा को बेहतर इलाज के लिए लाहौर बुलाना चाहा, मगर अम्मा ने इनकार कर दिया क्योंकि अम्मा उस घर को किसी सूरत छोड़ने को तैयार न थी जहाँ उनकी सारी ज़िंदगी गुजरी थी। मैं अम्मा की जज्बाती कैफियत को समझ सकता था, इसलिए खामोश हो गया। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। ज़ैनब ने भी मुझसे वादा किया कि वो दिल लगाकर अपनी तालीम हासिल करेगी और मेरा हाथ बटाएगी, मगर मेरी बहन थी, मैं उसके कंधों पर बोझ नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने दिन रात मेहनत कर रहा था। मैं चाहता था कि अम्मा स्कूल की नौकरी छोड़कर घर में आराम करती, मगर अम्मा ने मेरी बात मानने से साफ मना कर दिया। तब भी मैं अम्मा से मुसलसल एक ही इसरार करता रहा कि वो नौकरी छोड़कर घर बैठ जाएं, क्योंकि मुझे उनकी गिरती हुई सेहत देखी नहीं जाती थी। मगर अम्मा को तो शायद मुझसे ज़्यादा घर के हालात की फ़िक्र थी, इसलिए वो भी नौकरी छोड़कर रहने को तैयार न थी। तब मैंने सोचा क्यों ना मैं कोई ऐसा बिजनेस कर लूँ जिससे मेरे घर के हालात भी बेहतर हो जाते और अम्मा को नौकरी भी ना करना पड़ती। मेरे पास कोई इतने पैसे तो ना थे कि मैं अकेला कोई काम शुरू कर सकता, इसलिए तब मैंने अपने एक दोस्त से जवार से मशवरा किया कि क्यों ना हम दोनों मिलकर कोई कारोबार कर लेते हैं। मेरा दोस्त जवार बहुत मुश्किल से राज़ी हुआ था, जिसके अपने घर के हालात बहुत ख़राब थे। मुझे उस पर भरोसा तो था, तभी उसके कहने पर मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और वापस अपने गांव चला गया था। वहां जवार ने भी मुझे ये कहा कि उसने अपना घर बेच दिया था और अपनी बूढ़ी माँ को लेकर एक किराए के छोटे से घर में रहने लगा था। जवार ने मुझे ये भी बताया था कि उसने अपना घर और अपनी माँ का कुछ जेवर बेचा था और मैंने अपनी मोटरसाइकिल बेचने के साथ साथ अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी और हमारे पास जो पैसे थे उन पैसों से हमने एक छोटा सा मछली फार्म बनाने का फ़ैसला किया था। जब हमने वो छोटा सा मछली फार्म शुरू किया था तो उस वक्त ना हमारे पास कुछ तजुर्बा था, ना ही कोई बड़ा सरमाया था, लेकिन हाँ अगर हमारे पास कुछ था तो वो थी हमारी नीयत, हमारी सच्चाई और इस सब से बढ़कर एक दूसरे पर भरोसा। मुझे आज भी याद है कि हमने पहला दिन किराए के एक बड़े मैदान में गुजारा था, जहाँ सिर्फ एक पुराना सा फार्म बना हुआ था। हम दोनों ने किराए के उस मैदान में वो सारा दिन सिर्फ सफाई में गुजार दिया था। वो जगह बेहद खस्ता हाल थी, जहाँ कीचड़ में डूबा हुआ एक पुराना सा टैंक था जिसमें कुछ मछलियाँ भी होती थी। गर्द आलूद दीवारें, जगह जगह दरारें और पानी के नालों में जमा गंदगी, बस वही हमारा फार्म था। और पहले तो ये सोचकर उस काम के लिए राज़ी ही न हुआ था कि हमें इस काम का कोई तजर्बा तो था नहीं, इसलिए हमें मुनाफा के बजाय नुकसान हो सकता था। लेकिन जब मैंने उसे समझाया कि अगर नियत ठीक हो तो किस्मत भी साथ देती है, तो मेरी बातें सुनकर उसे भी यकीन हो गया कि शायद हम बाकी कुछ कर सकते हैं। हमने 3 दिन में पूरे फार्म की सफाई मुकम्मल की, नालियाँ खोदी, पुराना पानी निकाला, पाइप लगाया। मैं दिन में मजदूरों के साथ काम करता और रात को नोट्स पढ़ता कि मछली पालने के असूल क्या होते हैं। जवार अपनी माँ से मिलने दोपहर को घर जाता और शाम तक वापस आकर मेरे साथ फिर से काम में मसरूफ़ हो जाता। जो कुछ उसके गाइड में लिखा था मैंने उस पर अमल करना शुरू कर दिया, मगर जवार तब भी मुझे मना करता रहा कि हमें इस कारोबार के बारे में कुछ मालूम ना था, इसलिए इस काम को छोड़कर दूसरा काम करते हैं। मगर मैंने उसकी हिम्मत बंधाई और फिर जब हम उस फार्म की सफाई करने में कामयाब हो गए तो हमने उसमें मछलियाँ पालने का फ़ैसला किया। पास के गांव के एक पुराने मछली फिरोज ने हमें बताया कि शुरू में नुकसान होगा, लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे और पूरी लगन के साथ काम करेंगे तो 6 माह में नतीजा हमारे सामने आ जाएगा। इन 6 माह में हमने दिन रात एक कर दिया। तब भी जवार हिम्मत हारने लगता तो मैं उसे समझाता कि अगर किस्मत ने साथ दिया तो देखना अगले साल तक तुम अपनी माँ के साथ नया घर भी बनवा सकोगे। मेरी बात पर वो मुस्कुरा देता। मैं अंदर ही अंदर खुद से यह कहता कि ऐसा ही हो, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो शायद मेरे दोस्त का मुझसे एतबार उठ जाएगा। 4 माह गुजर गए तो फार्म में कुछ जान आने लगी थी, लेकिन इसी दौरान एक शदीद बारिश हुई।
बारिश क्या थी कि आसमान टूट पड़ा था, नालियाँ बंद हो गई, पानी ऊपर आने लगा। जब मैं सुबह फार्म पर पहुंचा तो मेरे कदम रुक गए। हमारे आधे टैंक का पानी बह चुका था और दर्जनों मछलियाँ कीचड़ में तड़प रही थी। सवार मुझसे पहले ही वहाँ मौजूद था। नंगे पाँव पानी में उतरकर मछलियाँ उठा कर वापस डाल रहा था। मैं भी घबरा कर आगे बढ़ा और घबराते हुए उसे हौसला दिया कि हम हार नहीं मानेंगे। हम दोनों ने सारा दिन मछलियाँ बचाने में लगा दिया, मगर फिर भी इनमें आधी मछलियाँ मर गई थी और आधी बच गई थी। हमें कारोबार शुरू होने से पहले ही नुकसान हो गया था, लेकिन मेरा हौसला फिर भी न टूटा। हालांकि उस वक्त जवार हिम्मत हारने लगा था। उसी शाम मैंने ये भी देखा कि जवार की बूढ़ी माँ दरवाजे पर बैठी रो रही थी। मैं चुपचाप उनके पास गुजर गया। उन्होंने आहिस्ता से मुझसे कहा, बेटा, जवार ने अपना सब कुछ इस काम में लगा दिया है, इसलिए मेरी दुआ है कि तुम लोग कामयाब हो जाओ। अल्लाह तुम दोनों की मदद करे। उस दिन के बाद मैंने जवार को कभी कमज़ोर पड़ते ना देखा। उसने तो जिस अंदाज से मुझ पर भरोसा करके अपना सब कुछ दांव पर लगाया था, वो मेरे लिए हैरत की बात थी। मुझे तो लगा था कि मेरे लिए वो चंद हज़ार रुपये की नौकरी छोड़ देना ही बहुत बड़ी कुर्बानी थी, मगर जवार ने तो अपना मकान और अपनी माँ का जेवर भी फरोख्त करके अपना सब कुछ इस कारोबार में लगा दिया था। शुरू में हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा था, बल्कि हमें 4 महीने जो हमने सरमाया लगाया था, एक तरह से वो साथ ही डूब गया था। शुरू में हमें मार्केट से सामान भी बहुत महंगा मिलता और फिर मार्केट में जगह बनाना भी हमारे लिए आसान ना था, और अक्सर औक़ात तो ऐसा होता कि हम दिन भर काम करते मगर मुनाफा दूर की बात, हमारा खर्चा पूरा न होता। हमारा कारोबार क्या था? वो तो बस एक सादा सा फार्मूला था जो हमने मकामी मछली फरोशों से सीखा था, लेकिन हमने इसमें अपना इखलास और मेहनत मिलाई थी। लेकिन जवार की मेहनत बेमिसाल थी। वो मुझसे ज़्यादा मेहनत करता था। वो खुद सारा फार्म साफ करता। मैं तो कई बार उसे कहता भी था कि यार थोड़ा आराम कर लो, तू भी इंसान है, मगर वो हंसता हुआ मुझे कहता कि जब तक ये कारोबार अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो जाता, आराम तो बस मुझ पर हराम है। हमने दिन रात एक कर दिया। हम दोनों ने जैसे ही अपनी नींद कुर्बान कर दी, हमारी आंखों में सिर्फ एक ही ख्वाब था, हमारी कामयाबी। और जब हमें पहली बार एक मुनाफा मिला तो वो दिन हमारी ज़िंदगी का खुशी भरा दिन था। वक्त गुजरता गया और हमारा कारोबार बढ़ने लगा। हमने एक वर्कर भी रखा, फिर एक छोटा सा दफ्तर भी किराए पर ले लिया। इलाके में हमारी पहचान बनने लगी और मैं जानता था कि ये सब हमारी कुर्बानियों की वजह से हुआ था। जब जवार थक जाता तो मैं उसे हिम्मत दिलाता, जब कभी मैं मायूस होने लगता तो वो मुझे आगे बढ़ने का हौसला देता। और फिर एक दिन ऐसा आया जब एक बड़ी कंपनी ने हमें एक बड़ा ऑर्डर दिया। वो लोग पूरे जनूबी पंजाब में एक बड़े पैमाने पर मछली सप्लाई करना चाहते थे और उन्हें हमारी शोहरत पर यकीन था। वो सब हमारे लिए जैसे एक ख्वाब सच होने जैसा था। हमने एक बड़ा मुआहदा साइन कर दिया, मगर इसके लिए सरमाया भी ज़्यादा चाहिए था। उस वक्त जवार थोड़ा झिझका था, लेकिन मैंने उसे अपने हिस्से के पैसे अदा कर दिए थे। वो साल तो जैसे हमारी ज़िंदगी का सबसे कामयाब साल था। हमने दिन रात मेहनत की, अपनी नींदें तक कुर्बान की। हम फार्म के किनारे बैठे टैंकों के पानी में मछलियों की चमक देखकर मुस्कुराते। वो मंजर हमें याद दिलाता था कि ख्वाब वाकई पूरे हो सकते हैं अगर नीयत सच्ची हो। पूरा 1 साल गुजरा और जब हमने हिसाब लगाया तो हमें यकीन न आया कि हमने अपनी सारी सरमायाकारी 3 गुना मुनाफा कमाया। उस दिन हमने फैसला किया कि हम अपने कारोबार को मज़ीद फैलाएंगे। हमने अपने गांव के आसपास एक और ज़मीन किराए पर ली ताकि वहां हम नया फार्म बनाएं। 4 नए वर्कर रखे और जवार ने खुद मार्केट का निज़ाम संभाल लिया। मैं दफ्तर और अकाउंट्स देखता। हमने मछलियों के साथ साथ फ्राइंग यूनिट का भी प्लान बनाया था ताकि होटलों और रेस्टोरेंट्स को तैयारशुदा मछली सप्लाई कर सकते। इस लम्हे हमारी ज़िंदगी जैसे नई रोशनियों से भर गई थी। जवार की माँ भी खुश थी। उनकी दुआएं ही तो थीं जो हमें कामयाबी की तरफ ले जा रही थी। अगले ऑर्डर से पहले मैंने अपने हिस्से की रकम मशीनरी में लगा दी, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास था कि इससे पहले जवार ने भी अपनी सारी जमा पूंजी इस कारोबार में लगाई थी। इसीलिए अब की बार मैंने अपना सारा हिस्सा लगा दिया था ताकि पहले से भी ज़्यादा मुनाफा हो सकता। वो सब कुछ एक ख्वाब जैसा लगने लगा था। हमारा वो ख्वाब जैसे एक नया रूप डालने लगा था। कई बार मैं सोचता कि मैं वो एक गरीब लड़का था जो कभी मजदूरी करता था और जवार जिसके हालात मुझसे भी ज़्यादा ख़राब थे। अब हम दोनों अपना कारोबार चला रहे थे। पार्टनरशिप के लिए हमें मज़ीद सरमाया लगाना था। मैंने अपनी सारी बचत भी इसमें डाल दी, यहाँ तक कि अपनी माँ के वो जेवर भी बेच दिए जो उन्होंने मेरे होने वाली बीवी के लिए संभाल के रखे थे।
मगर मैंने अम्मा को यकीन दिलाया कि मैं उनको उससे दुगने जेवर बनाकर दूंगा और अम्मा ने खुशी से मुझे वो सब दे दिया। शुरू में सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, मगर फिर अचानक हालात बदलने लगे। हमने सब्र किया मगर हालात सुधरने के बजाय बिगड़ने लगे। बिजली के बिल बढ़ गए, खुराक महंगी हो गई और हमारे अखराजात बढ़ने लगे। मैं दिन रात मेहनत करने लगा, कभी 2 दिन तक सोए बगैर रहता। फिर एक दिन उस कंपनी का नुमाइंदा आया जिसके साथ हमने बड़े मुआहदे किए थे। उसने हमें बताया कि अगले महीने एक बड़ी डील आने वाली है। दुबई की मार्केट के लिए हम खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। हमने तैयारी शुरू कर दी और मछलियाँ ली और ज़्यादा खुराक ली, नई मशीनरी। उस वक्त मुझे लगने लगा कि अब हमारा नाम इंटरनेशनल सतह पर हो जाएगा। जब हमारी डील मुकम्मल हुई और हमने मछलियाँ बेच दी, लेकिन जब अदायगी का वक्त आया तो उस वक्त अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मैं उनको लिए अस्पताल चला गया और सारी जिम्मेदारी जवार को दे गया कि वह कंपनी के मामलात को देख लें। मगर 2 दिन बाद जवार मुझे कहने लगा कि हमें अभी दुबई से रकम ट्रांसफ़र ही नहीं हुई थी। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, कुछ दिनों में आ जाएगी। वो बहुत ही बड़ी रकम थी, इसलिए हो सकता था कि कुछ वक्त लग जाता। मगर फिर 1 महीना गुजरा, फिर दूसरा, मगर पैसे ना आए। रोज़ बरोज़ कहता, यार ये लोग हमें उल्लू बना रहे हैं। वो भी मुझे तसल्ली देता और कहता, नहीं, उन्होंने वादा किया है, वो हमें धोखा नहीं दे सकते। मुझे यकीन था कि वो कंपनी के साथ खुद ही निपट लेगा, इसलिए मैंने बेफिक्र हो गया। मगर तीसरा महीना आते आते हकीकत सामने आने लगी। कुछ दिन जवार फार्म पर ना आया तो मुझे फिक्र होने लगी। उसका नंबर भी बंद था। तभी उसके घर चल पड़ा, क्योंकि ऐसा तो कभी हुआ ही ना था कि जवार मुझे बताए बगैर इतने दिन तक फार्म ना आता। मैं जब जवार के घर पहुंचा, दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, सारा घर खाली था। जवार कहीं नहीं था। मेरा दिल धड़कने लगा। परेशानी और घबराहट से मैं उसे पुकारने लगा, मगर कोई जवाब ना आया। जब मैं काफ़ी देर तक जवार के घर के पास परेशान खड़ा रहा तो उसके मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने मुझे मालूम हुआ कि जवार 3 दिन पहले कहीं गया है। कह रहा था कि कुछ ज़रूरी काम है, तब से वापस नहीं आया। वो बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने एक सांस में बहुत से सवाल पूछ डाले कि वो कहाँ गया, किसके साथ, मगर मुझे बस एक ही जवाब मिला कि ये तो नहीं मालूम। बस जाते वक्त वो बहुत परेशान और जल्दी में लग रहा था। मैं बेबस वहाँ से निकल आया। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। दिल बार बार कह रहा था कि कुछ तो गलत हुआ था, मगर क्या। मैंने मोबाइल निकाला, एक बार फिर उसका नंबर मिलाया, मगर उसका नंबर भी बंद था। मैंने अगले 3 दिन जवार को हर जगह तलाश किया जहाँ तक मुझे उसके बारे में अंदाज़ा था कि वो कहाँ हो सकता है। मैं हर जगह गया, मगर उसकी कोई खबर न थी। फार्म पर भी वर्कर रोज़ भी मुझसे पूछते कि जवार भाई कब आएंगे, और मैं बस एक ही बात कहता, जल्द आ जाएंगे, बस दुआ करो। मगर दिल जानता था कि कुछ तो बुरा हुआ है। मैं शायद उन वर्कर्स को नहीं बल्कि खुद को तसल्ली दे रहा था कि सब ठीक हो जाएगा। चौथे दिन मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज़ थी, मैं उसी कंपनी से बात कर रहा हूँ जिस कंपनी ने आपकी डील की हुई थी। मैं अकाउंट्स में काम करता था। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मैंने फ़ौरन से उनसे पूछना शुरू कर दिया कि जब उनका ऑर्डर वक्त पर पहुँच गया था तो उनकी तरफ से पेमेंट ले। मगर उसकी बात सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। सर, हमारी तरफ से कोई देर नहीं हुई, बल्कि हमने तो ऑर्डर डिलीवर होने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारी रकम भेज दी थी। मगर मेरी तसल्ली ना हुई। मैं ये सोचना नहीं चाहता था कि जवार धोखा दे सकता है, इसलिए मैंने उनको साफ इनकार कर दिया कि हमें कोई रकम नहीं मिली। मगर उनकी अगली बात सुनकर मेरी सांस रुक गई थी। वो कहने लगा कि सर, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि वो रकम इस बार एक पर्सनल अकाउंट में मुंतकिल हुई है जो आपके पार्टनर हैं, उन्हीं को तो हमने सारी रकम भेजी थी। मेरा वजूद कांपने लगा। फ़ोन बंद होते ही ज़मीन जैसे घूम गई। मैं एक बार फिर वो सब जुटला रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो जवार जिसने मेरे साथ कारोबार करने के लिए अपना घर बेचा, माँ का जेवर बेचा, मेरे साथ दिन रात काम किया, वो मुझे धोखा दे सकता है। मगर मेरा दिल मानने को तैयार न था, लेकिन हकीकत सामने थी जिसे झुठलाना भी मुश्किल था। मेरे जहन में सवालों का तूफान था। मैं सोचने लगा कि अगर उसने वाकई ऐसा किया था तो आखिर क्यों ऐसा किया। उसे मुझ पर भरोसा नहीं था या उसको कोई मजबूरी थी। सब कुछ मुझे मालूम हो चुका था, मगर मैं ये मानने को तैयार ही ना था कि जवार धोखा दे सकता है। अगले दिन मैंने फार्म के ऑफिस से तमाम फाइलें निकाली, मगर हर चीज़ उस वक्त की गवाह थी कि रकम किसी जवार अहमद के अकाउंट में गई थी। मैंने सर हाथों में पकड़ लिया। मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा साथी,
جس پر میں نے بھروسہ کیا تھا سب دھوکہ نکلا۔ شاید اس پر بھروسہ ہی میرا سب سے بڑا جرم تھا۔ میں نے ایک ہفتے کے بعد پولیس کو رپورٹ درج کروائی، مگر دل سے نہیں، بس ایک رسمی کارروائی کے طور پر۔ میں چاہتا تھا کہ وہ جہاں بھی تھا لوٹ آتا، مجھے سب کچھ بتاتا۔ فارم کے ورکرز اب تنخواہیں مانگ رہے تھے، مجھ پر قرض بڑھتا جا رہا تھا۔ فارم کے ورکرز مجھ سے تنخواہ کا تقاضا کرتے، ان کے چہروں پر بے بسی لکھی تھی، مگر میرے پاس دینے کو کچھ نہ تھا۔ میں ان سے نظریں نہ ملا پاتا۔ کبھی کوئی ورکر اپنی مجبوری کا ذکر کرتا، کبھی کوئی اپنے گھر کے کرائے کا، لیکن میں ہر بار کہتا 2 دن، بس 2 دن بعد رقم آ جائے گی، مگر وہ 2 دن بھی ہفتوں میں بدل گئے۔ خوراک کے سپلائرز روز فون کرتے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ حالات اب میری مٹھی سے ریت کی طرح پھسل چکے تھے۔ اماں بہت بیمار تھی، زینب بھی جوان ہو گئی تھی اور اس کی شادی کی فکر الگ کی ٹینشن میں مبتلا کرنے لگی۔ اس لیے میں اماں سے حقیقت نہ کہہ پاتا۔ وہ ہر شام مجھ سے پوچھتی کہ جواہر نہیں آتا آج کل، مگر میں مسکرا دیتا کہ کام بڑھ گیا ہے۔ اماں وہ شہر گیا ہے، جلد آئے گا۔ جھوٹ بولنا اب عادت بننے لگا تھا، مگر سکون غائب تھا۔ اور پھر اماں کی دوا ختم ہو گئی۔ میرے پاس اتنے بھی پیسے نہ تھے کہ دوا خرید سکتا۔ جب اماں کی کھانسی نہ رکی، میں نے فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا تھا۔ میں نے پراپرٹی ڈیلر کو فون کیا، میں نے خود انہیں گھر دکھایا۔ ہر کمرہ، ہر دیوار، ہر کھڑکی میری یادوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ وہی گھر تھا جہاں اماں کی دعائیں گونجتی تھیں، مگر جب انہوں نے مجھے اس گھر کی قیمت بتائی تو میرے دل پر چاقو چلا۔ میں جانتا تھا کہ وہ قیمت کم تھی، مگر مجبوری ہر دلیل سے بڑی ہوتی ہے۔ میں نے دستخط کیے، کاغذ پر قلم چلا اور ساتھ ہی میرے اندر کچھ مر گیا۔ گھر بیچنے کے بعد اماں کو بتایا کہ ہم بڑے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں، یہاں کا ماحول ٹھیک نہیں۔ وہ مسکرا دی اور میں نے اندر ہی اندر خود کو کوسا۔ ہم ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئے اور میں خود کو تسلی دیتا کہ یہ سب وقتی ہے، بس کچھ دن، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فارم اب خالی پڑا تھا، مشینیں زنگآلود، ٹینک خالی۔ میں نے آخری بار فارم کی مٹی پر ہاتھ رکھا اور پھر مجھے فارم بند کر دینا ہی بہتر لگا، ورنہ قرض، ورکرز اور سپلائرز سب میری زندگی کا قرض بن جاتے۔ میں نے سب کچھ کھو دیا۔ جب آخری ورکر بھی چلا گیا تو میں نے آفس کا دروازہ بند کیا، چابی جیب میں رکھی، مگر دروازے پر ہاتھ رکھتے ہی آنسو بہہ نکلے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں میں نے خواب دیکھے، ہنسا تھا، مگر اب وہ خوابوں کا مزار بن چکی تھی۔ دن گزرتے گئے، مگر میری قسمت جیسے مجھ سے روٹھ گئی۔ گھر چھوٹ گیا، فارم بند ہو گیا اور پیسے بھی ختم۔ اب جو بھی باقی تھا وہ صرف میری غیرت تھی، جو مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے کوئی کام کرنے پر مجبور کرنے لگی جس سے میں گزارے لائق چند پیسے کما سکتا۔ اماں اور زینب مجھ سے فارم کے بارے میں پوچھتی رہتی، انہیں کیا خبر تھی کہ فارم تو کب کا میری زندگی سے نکل چکا تھا۔ ایک دن جیب میں ہاتھ ڈالا تو بس 200 کے نوٹ ہی نکلے۔ میں نے وہ بھی اماں کی دوا کے لیے دے دیے اور خود سارا دن بھوکا رہا۔ وہ لوگ جن کے ساتھ میں نے ڈیلز کی تھی، وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ میں دیوالیہ ہو چکا تھا، سب ادھار لے چکا تھا، اس لیے کوئی دوبارہ مجھے قرض دینے کو تیار نہ تھا۔ پھر کچھ سوچ کر میں بازار گیا، مزدوروں کے اڈے پر کھڑا ہوا، مگر شام تک کوئی کام نہ ملا۔ جب واپس آنے لگا تو راستے میں ایک چھوٹا سا بچہ دیکھا، اس کے ہاتھ میں کپڑا تھا، وہ گاڑیوں کے شیشے صاف کر رہا تھا۔ ڈھلتی شام میں اس کے ہاتھوں پر سورج کی روشنی پڑ رہی تھی۔ میں نے رک کر دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا جیسے زندگی نے اسے شکست نہ دی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے خود سے کہا، اگر وہ بچہ شرمندہ نہیں ہوا تو تم کیوں شرمندہ ہو رہے ہو؟ اگلے دن میں نے بھی ایک پرانا کپڑا، ایک خالی بوتل اور تھوڑا سا پانی لیا۔ اتنا سرمایہ تھا، میں سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا، پہلی بار گاڑیوں کے شیشے صاف کرنے کے لیے۔ پہلی گاڑی رکی، ڈرائیور نے مجھے گھور کر دیکھا۔ ہٹاؤ، ہاتھ مت لگاؤ گاڑی کو۔ میں پیچھے ہٹا، دل میں ایک چبھن ہوئی، مگر پھر دوسری گاڑی آئی۔ میں نے بغیر کچھ کہے شیشہ صاف کیا، ڈرائیور نے 100 روپے دیے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور شکر ادا کیا۔ اس دن ایک دن کے مجھے 1000 مل گئے تو لگا جیسے خزانہ مل گیا تھا۔ میں نے وہ رقم سنبھال کر رکھی، رات کے لیے کچھ کھانے کو خریدا اور گھر چل پڑا، مگر تھکان اتنی تھی کہ خود کچھ کھائے بغیر ہی سو گیا۔ پھر وہ میرا روز کا معمول بن گیا۔ میں صبح سویرے آنکھوں میں آنسو لیے گھر سے نکل جاتا، لوگوں کی طرح طرح کی باتیں اور نظریں برداشت کرتا، مگر پھر بھی کچھ کیسے ہاتھ آنے لگے۔ میرے لیے اس وقت وہ پیسے ہی میری دولت بن گئی تھی۔ کبھی کبھی رات کو نیند نہ آتی تو میں سوچتا کہ اگر جواہر واپس آ جائے، اگر فارم دوبارہ کھل جائے۔ پھر خود ہی ہنس پڑتا اور خود کو ملامت کرتا کہ ایسے خواب اب نہیں دیکھے جاتے۔
मेरी ज़िंदगी का सब ही यही मामूल बन गया था कि सूरज निकलने से पहले मैं चौक पर पहुंच जाता, हाथ में कपड़ा, साथ पानी की बोतल, गाड़ियों के शीशे साफ करता, कभी कुछ चंद सिक्के दे जाता, कभी गालियाँ, लोगों के चेहरों पर तरस और हकारत की एक अजीब आमेजिश होती, कभी कोई गाड़ी रुकती, अंदर बैठे बच्चे खिड़की से इशारा करते, अंकल ये वाला शीशा साफ कर दो। मैं हंस देता, बच्चों की मुस्कुराहट में दुनिया की सारी थकन खुल जाती। दिन भर धूप, गर्द, शोर, मगर मैं चुप रहता। मुझे अब बातें नहीं करनी आती। शाम होते ही घर चला जाता कि अब माँ इंतज़ार कर रही है। अम्मा और ज़ैनब ने भी सवाल पूछने छोड़ दिए थे। शायद घर के और मेरी बदलती हालत देखकर उनको अंदाज़ा हो गया था कि मैं सब कुछ खो चुका था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। सूरज ढलने लगा था। मैं चौक पर आखिरी चंद गाड़ियों के लिए पास खड़ा था जब एक सियाह कार आकर रुकी। गाड़ी नहीं थी, अंदर खुशबू फैली हुई थी, किसी महंगे परफ्यूम की खुशबू। जब शीशा नीचे हुआ तो अंदर एक औरत 40 के करीब उम्र, मगर चेहरे पर वकार और थकन का मिला जुला नक्श। उसने गौर से मुझे देखा और कहने लगी, ये शीशा साफ कर दो। मैं जल्दी से शीशा साफ करने लगा। मेरी नज़र तो जैसे नीचे थी, मगर मुझे एहसास हुआ कि वो औरत मुझे मुसलसल देख रही थी। जब मैंने काम ख़त्म किया तो वो कहने लगी, तुम मुझे अच्छे घर के लगते हो, फिर ये काम क्यों कर रहे हो? मगर मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि मैं याद नहीं करना चाहता था कि मैं कौन था और मुझे हालात ने क्या बना दिया था। वो चंद लम्हे चुप रही, फिर कहने लगी, अगर मैं तुमसे एक बात कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने सर झुका दिया। तभी उसने पर्स खोला और एक वजनी लिफाफा निकाला। फिर धीरे से कहने लगी, अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लो तो मैं तुम्हें एक रात के 2 लाख रुपए दूंगी। मैं ठिठक गया, मेरे हाथों से कपड़ा गिर गया। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा, मगर वो बोलती जा रही थी। मेरे होंठ खुश्क हो गए, दिमाग सुन्न हो गया। 2 लाख रुपए, इतनी रकम! मैं अपनी माँ का इलाज करवा सकता था, ज़ैनब का जहेज़ मुकम्मल हो सकता था। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैं भीख नहीं लेता। मगर वो मुस्कुरा दी, ये भीख नहीं रिश्ता है, तुम्हें इज़्ज़त दूंगी, तुम्हारी गैरत सलामत रहेगी। मेरे अंदर जैसे कोई चीज़ टूट गई। मैंने नज़रें नीचे निकाली। एक लम्हे को मैंने सोचा, अगर मैं हाँ कर दूँ तो सब आसान हो जाएगा। अम्मा का चेहरा दिमाग में उभरा, ज़ैनब की मुस्कुराहट याद आई। मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे सोचने दो, फैसला तो मैं बस उसी वक्त कर चुका था जब उसने मुझे 2 लाख रुपए की ऑफ़र की थी। वक्त तो मैं सिर्फ इसलिए मांगा था कि कहीं मेरा फैसला गलत तो नहीं था। मगर फिर अम्मा की भूख और छोटी बहन की मुस्कुराहट के आगे मुझे वो फैसला बिल्कुल गलत न लगा। इसलिए मैंने अगले ही दिन उस औरत को अपना फैसला सुना दिया कि मैं तैयार हूँ। मेरे इस निकाह में सिर्फ मेरे घर वाले शामिल नहीं होंगे। वो औरत जैसे खुशी से खिलखिला उठी और मुझे अपने साथ एक बड़े बंगले में ले गई। वो बंगला बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था कि अपने कारोबार को चलाने के बाद अपनी माँ के लिए बनाऊंगा। मगर फिर सवार उस धोखेबाज ने मुझे धोखा दे दिया। मेरा निकाह सादगी से इरम के साथ हो गया। मुझे बस एक बात की जल्दी थी कि मैं जान सकता कि आखिर उस लड़की में ऐसी क्या मजबूरी थी जो उसकी माँ ने एक सड़क चलते से उसका निकाह करवा दिया था और साथ ही इतनी बड़ी रकम भी देने को तैयार थी। मुझे लगा शायद वो कोई माजूर लड़की थी जिसकी माँ रिश्ता न मिलने की वजह से हालात से तंग आकर मेरे साथ उसकी शादी कर रही थी। लेकिन जब मैं उसके कमरे में गया तो हैरान रह गया। वो लड़की जिससे मेरा निकाह हुआ था, सफ़ेद दुपट्टे में मलबूस, कमज़ोर सी, खौफज़दा सी, अपने पेट पर हाथ रखे बैठी थी। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून और थकन का इम्तिजाज था। मेरे कदम जैसे फर्श से जुड़ गए। मेरा दिमाग सुन्न हो गया, क्योंकि वो वजह मेरे सामने थी जिसकी वजह से उसकी माँ ने उसका निकाह मुझसे किया था। मैंने हैरानगी से उससे पूछा कि तुम तो हामिला हो। तब उसने नज़रें उठाईं। उसकी आंखों में सिर्फ खामोशी थी। मैंने पीछे हटकर कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, मगर मेरे घुटने जवाब दे गए। वो धीरे से कहने लगी कि हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे दिल में जैसे किसी ने तेज़ धार चाकू घोंप दिया था। तो फिर उसकी माँ ने मुझसे निकाह क्यों करवाया? एक लम्हे में सब कुछ उलझ गया। मेरी गैरत, मेरे ख्वाब, मेरी मजबूरी, सब का मतलब बदल गया था। मैंने पूछा, ये निकाह क्यों? तब उसने मुझे वो सारी बात बता दी कि उसकी माँ ने मुझे ही क्यों चुना था अपनी बेटी के साथ निकाह के लिए। वो कहने लगी कि कुछ अर्सा पहले हमारे घर में डाकू घुस आए थे। उन्होंने हमारे घर से सारा कीमती सामान लूट लिया, मगर जब इससे भी उनका दिल न भरा तो उन्होंने उस सामान के साथ मेरी इज्जत भी अपने हाथ साफ कर दिए। उस वक्त बदनामी के डर से हमने किसी को कुछ न बताया, मगर जब वक्त गुजरता गया
मुझे और अम्मा को एहसास हुआ कि इस डकैती में हमारा क्या कुछ लूट गया था, मगर हम किसी को क्या यकीन दिलाते, क्योंकि जो भी हुआ उसमें हमारा अपना भी कसूर था कि हमने ठीक वक्त पर किसी को कुछ न बताया, बल्कि बात को छुपा दिया। मालूम होने पर अम्मा ने करीब के रिश्तेदारों पर भरोसा करके इस बारे में बताया कि शायद ही मुझे कबूल कर लेता, क्योंकि इस वक्त तक इतनी देर हो चुकी थी कि मैं इस वक्त बच्चे को ज़ाया नहीं करवा सकती थी। लेकिन किसी भी रिश्तेदार ने मेरे साथ निकाह करके मुझे अपनाने से इनकार कर दिया। बस तभी अम्मा किसी ऐसे इंसान को ढूंढने लगी जो मुझे और इस बच्चे को इज्जत दे। अम्मा चाहती थी कि मैं इस बच्चे को किसी जायज़ नाम के साथ जन्म दूँ। तुम्हें शायद इसलिए चुना गया कि तुम गरीब हो, मजबूर हो, मगर शरीफ हो। अम्मा कहती हैं ऐसे लोग भले ही मजबूर क्यों ना हो, मगर इज्जत नहीं भेजते। मेरे आंसू खुद ब खुद बह निकले। मैंने सोचा था कि मैं एक गलत सौदा करने जा रहा था, मगर हकीकत में किसी की इज्जत बचाने का जरिया बन गया था। मैं सोचने लगा कि कितनी अजीब दुनिया है। कुछ लोग मोहब्बत के बावजूद भी साथ नहीं रह पाते, और कुछ अजनबी सिर्फ एक फैसला लेकर एक दूसरे की ज़िंदगी बदल देते हैं। मुझे लगा था शायद मेरी ही ज़िंदगी दुखों और तकलीफ़ों से भरी हुई थी, मगर वो लड़की जो इस वक्त मेरे सामने बैठी थी, वो एक कर्मनाक तूफान से गुजर रही थी। उसके चेहरे पर एक ऐसा दर्द था जिसे उसने अपनी उम्र के सब आंसू एक ही लम्हे में रो दिए थे। मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की, मगर वो बस इतना बोली, मेरी ज़िंदगी में जो हुआ वो मेरी मर्ज़ी से नहीं हुआ था। अम्मा चाहती हैं कि ये राज हमेशा दफन रहे, इसीलिए कल सुबह तुम आज़ाद हो जाओगे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मगर मैं फैसला कर चुका था कि अब मैं उसे मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ सकता, बल्कि उसको उसके बच्चे समेत कबूल करने को तैयार था। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर अजीब सा नूर था। शायद पहली बार उसे सुकून मिला था कि अब उसका बच्चा दुनिया में किसी के नाम लेकर आएगा। उसकी माँ ने मुझे 2 लाख रुपए दे दिए और कहा यह वादे के मुताबिक वो रकम है, मगर मैंने वो लिफाफा न लिया। वो औरत चंद लम्हे चुप रही, फिर कहने लगी, तुम जैसे लोग अब शायद दुनिया में बाकी नहीं रहे, लेकिन तुमने मेरी सोच को गलत साबित कर दिया। वो औरत एक बहुत बड़ा बिजनेस कर रही थी, मगर मैं उसको उस दिन से पहले जानता ना था। जब उसने मेरी नेक नीयति देखी तो मुझे भी अपने साथ बिजनेस में शामिल करना चाहा, क्योंकि वो जान चुकी थी कि मैं उसके पैसे कबूल नहीं करूँगा। जब मैंने उसकी बेटी की कहानी सुनी थी, मेरा दिल इस बात पर राजी ही नहीं हुआ था कि मैं किसी की मजबूरी के पैसों से कैश कर लेता, इसलिए मैंने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। मगर जब उसने मुझे अपने साथ बिजनेस में शामिल होने का कहा तो उससे मैंने इनकार न कर सका, बल्कि मुझे उस वक्त वो औरत एक फरिश्ता लगी जो मुश्किल वक्त में मेरी मदद करने को आई थी। जब मैंने अम्मा को सारी बात बताई कि मैं एक मजबूर लड़की से निकाह कर चुका हूँ, क्योंकि वो माशरे में बेइज्जत नहीं होना चाहती थी, और तब मैंने अम्मा को जवार के बारे में भी बताया कि किस तरह वो मुनाफा मिलने पर सारा पैसा लेकर भाग गया था, और उस वक्त से मैं मकरूज होकर रह गया था और किस मुश्किल से खर्चा पूरा कर रहा था। तो अम्मा देर तक खामोश रही। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो आंसू थे, मगर वो आंसू दुख के नहीं, सुकून के लग रहे थे। अम्मा ने अपनी झुर्रियों भरी हथेली मेरे सर पर रखी और मुझे दुआ दी कि बेटा, जो हौसला इंसान दिल से करे, अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है। तुमने किसी मजबूर औरत के साथ नेकी की, किसी की इज्जत बचाई, अल्लाह तुम्हें उसका हौसला ज़रूर देगा। मैं अम्मा के कदमों में बैठ गया। अम्मा, मैंने कुछ नहीं किया, बस मौका मिलने पर बेज़मीर नहीं हुआ। वो मुस्कुरा दी कि बेटा, यही तो सबसे बड़ा इम्तहान होता है, जब आदमी के सामने दौलत, ताकत या आसान रास्ता रखा जाए और फिर वो भी सीधे रास्ते पर रहे। जब मैंने उस औरत के साथ बिजनेस शुरू किया तो मेरे घर के हालात हफ्तों में बदलने लगे। फिर मैंने अपना वो फार्म भी दोबारा शुरू कर दिया जो मेरे उरूज का सबब भी बना था, और जवाल की वजह भी वही था, मगर मैं उसको छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि उस ज़मीन में मेरे बहुत से ख्वाब दफन थे जिनको मैं हकीकत में बदलना चाहता था। इसलिए वही पुराने डीलर मेरे पास आने लगे, और तभी जवार को भी शायद खबर मिल गई कि मैं वो फार्म एक बार फिर से शुरू कर चुका हूँ। एक दिन वो मेरे पास आया तो मुझे उसको देखकर गुस्सा नहीं आया, बल्कि मैं उसको देखकर ऐसे अनजान बन गया जैसे मेरा उससे कभी कोई वास्ता ही ना रहा था। वो मुझसे माफ़िया मांगने लगा, क्योंकि वो जो पैसे लेकर भागा था वो आखिर कितना अरसा चला सकता था। जब वो पैसे ख़त्म हुए तो उसमें इतनी हिम्मत ना थी कि वो दोबारा मेरा सामना कर सकता। जब उसके हालात बद से बदतर हुए तो उसकी अम्मा की बीमारी के लिए उसके पास फूटी कौड़ी न बची और वो चल बसी। उस वक्त से जवार खुद में हिम्मत पैदा करता। वो किसी तरह मुझ तक पहुँचकर मुझसे माफ़िया मांगता
मैं उससे माफ़ तो कर चुका था मगर दोबारा उससे कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाहता था। उस वक्त मेरे जहन में एक ही ख्याल आया कि मेरे घर के हालात भी तो इस कदर बुरे हो गए थे। मेरी अम्मा भी तो बीमार थी और शायद उसकी अम्मा से भी ज़्यादा बीमार थी, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मेरी माँ को ज़िंदगी दी, सेहत दी, क्योंकि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया था, किसी के साथ कोई फ़रेब नहीं किया था, इसलिए अल्लाह ने मेरी मदद की। लेकिन ज़वार जो मुझे धोखा देकर फ़रार हो गया था, उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।